बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ज़रूरी भी है डिस्कस करना, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू आवर यूथ. सो लेट्स स्टार्ट. जिस पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे वो एक बेसिकली न्यूज़ है. एंड एज यू कैन सी दिस इज़ अ स्क्रीन शॉट फ्रॉम अ ऑनलाइन पेपर, ऑनलाइन न्यूज़ चैनल, जिसमें कि ये लिखा है क्लास 12th स्टूडेंट डाइज बाय सुइसाइड आफ्टर जेई मेंस रिजल्ट इन यूपी. एंड सी दिस इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर सुसाइड लेटर. सॉरी मम्मी पापा. पहले तो जानते हैं जेई मेंस एग्ज़ाम क्या है भाई. जेई मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है ताकि you can do your engineering course from reputed IITs or NITs. IITs means ki Indian Institute of Technology. So if you have taken maths in your 11th and 12th and if you want to become an engineer, then you give this exam JEE, and after you qualify the exam you are qualified to apply into IITs to get your BTech degree. तो जेई भी 2 स्टेप्स में होता है, जेई मेंस और एडवांस. तो पहले आप जेई मेंस देंगे फिर एडवांस देंगे, एंड इफ़ यू क्लियर योर एडवांस देन यू गेट इनटू IITs. उसमें नहीं जाएंगे. पहले हम ये देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है. अभी तक जितना हमने पढ़ा हमको यही पता लगा है कि उसके मेंस में कम नंबर आए थे. ओके, लेट्स सी. The 18-year-old student was enrolled at a private coaching institute in Gorakhpur. She was only 18 years old and she took her own life. इससे ज़्यादा ग्रेव, इससे ज़्यादा डेवस्टेटिंग चीज़ और क्या हो सकती है. I mean you had your whole life, आपके सामने पूरा लाइफ पड़ा था अभी. You had just lived your 1/4 or 1/5 of your life, और आपने डिसाइड उसी में कर लिया कि आपसे कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. She was allegedly devastated by her low marks in JEE Mains and decided to take the drastic steps. उसके कम नंबर आए थे शायद JEE Mains एग्ज़ाम में, and she took this step to end her life. तो पहले हम लोग पूरा आर्टिकल रीड करेंगे. मैं आपको बताऊंगा क्या है इसका मतलब, and then we will discuss it later. The 18-year student was enrolled at a private coaching institute in Gorakhpur. She was allegedly devastated by her low marks in JEE Mains and decided to take the drastic step. So अभी उसके बारे में पूरा हम देखते हैं क्या है. A class 12th student died allegedly by suicide in उत्तर प्रदेश का गोरखपुर. After distressed मतलब कि उसको स्ट्रेस था, परेशान थी, ओवर स्कोरिंग लो मार्क्स इन जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम इन मेंस 2025, जो कि इसी साल हुआ है. The result of JEE Mains, a competitive exam for engineering admissions, were announced on Tuesday. The 18-year-old student was enrolled at a private coaching institute in Gorakhpur and was reportedly devastated. Devastated मतलब होता है कि आप ऐसा फील करें कि you have lost everything, कुछ बचा नहीं है. By her low score, unable to cope with the disappointment, she died allegedly by suicide on Wednesday afternoon. The class 12th student left behind a note apologizing to her parents. माफ़ी मांगना, apologizing. She wrote, "Sorry mummy and papa, please forgive me, I couldn't make it. Our journey together ends here, don't cry. You both gave me immense love. I couldn't fulfill your dreams." You see this line, this is a very strong statement. I couldn't fulfill your dreams. मतलब you are just 18 and you are trying to fulfill your mother's and father's dream. ठीक है, parents should pressurize their students to study, but इतना भी नहीं कि they start believing that
it is them who will fulfill their parents' dream and not the vice versa or the opposite. The teenager had returned from home just 2 days ago. On Wednesday morning, she spoke to her father and even got her mobile phone recharged. During the conversation, she asked not to inform anyone about her exam results. Her father recalled that he had reassured her and encouraged her to prepare for the next attempt. He never imagined that his daughter would take such drastic steps. Obviously, no one imagines, no father or mother can imagine this, that their son or daughter will, take this step to end his or her life. This is not an option. So, what we can do? Together as a society, जितना अभी तक मैंने जाना है, I'm 25 or 26 years old, and I have failed as many times as anyone can expect. It could be more than 15 to 20 times in my interviews, in my written, and what not. So, failures are a part of life. You will fail. यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि जो कि हमेशा सक्सेस पाता ही जाए. हो सकता है कि आप स्टार्टिंग फेज में आप जो भी कर रहे हैं सक्सेसफुल हों, बट इन योर लेटर फेज ऑफ लाइफ हो सकता है यू कैन फेल वट एवर यू डू. ऐसे चांसेस हो जाते हैं, सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं विच आर नॉट इन योर कंट्रोल. सो एक्सेप्ट फेलियर, बट देयर इज अ कैच. Never forget to never hesitate from putting your full into any work, putting your full effort. Into whatever you do. इसका ये मतलब है कि आपको जो भी करना है, जो भी आप लाइफ में कर रहे हो, विच इज़ एथिकल, जो कि ढंग से आपको करना चाहिए. ढंग से मतलब ये कि आप अच्छा काम करो. दिस लाइन इज़ नॉट फॉर समथिंग इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग नेगेटिव और बैड. जो भी आप करना चाहते हो अपना फुल दो उसमें. हार जीत तो लगी रहती है. भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि अपना काम करो, फल की चिंता मत करो. इसीलिए कहा गया था कि देखिए डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाना चाहती है, नो वन नोज. हो सकता है कि आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं पर चीज़ें उस हिसाब से सेट नहीं हो रही हैं, तो यू विल फेल. बट इन द लॉन्ग रन, लाइफ को हमेशा मैराथन में लीजिए, मैराथन की तरह लीजिए. इन द लॉन्ग रन things will fall in place. Things will fall in place. इसका ये मतलब है कि अगर आप फ्यूचर में देखें तो हो सकता है आज आप फेल हो, बट इफ़ यू जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, तो एक समय के बाद यू विल अचीव समथिंग. और ये सबके लिए सही होता है. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ. यहाँ सबको मिल जाता है अगर वो लगे हैं. हो सकता है आपकी अपेक्षाएं, आपने जो सोचा था वो ना मिले, बट यू विल अचीव समथिंग गुड, समथिंग ऑफ वर्थ. I don't know if you know about Steve Jobs or not, but we will discuss something here about Steve Jobs. स्टीव जॉब्स, आप इनके बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हो. ही इज़ द फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी. एप्पल जो आईफोन्स, आईपैड, ये सारी चीज़ें बनाती है, अमेरिकन कंपनी है. स्टीव जॉब्स एक ड्रॉप आउट थे. ड्रॉप आउट मतलब कॉलेज को इन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था और
इनको ये भी नहीं पता था कि इनको लाइफ में करना क्या है। लाइफ में इनके बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि ये करेंगे क्या। बहुत परेशान हुए, बट थोड़े समय के बाद चीज़ें एक प्लेस में आना शुरू हुई। इन्होंने शुरुआत की अपने दोस्तों के साथ गैरेज में अपनी कंपनी की, जो कि आज वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। वैल्यूएबल कंपनी। So I am taking this example to tell you that you never know what you are made, why you are made, or why you are put in place on this earth. सबका अपना एक रोल है, तो चीज़ों को है ना बहुत स्पीड करके मत देखिए। जैसा चल रहा है चलने दीजिए। Everyone fails, सबके लाइफ में होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट आती हैं, बट स्ट्रॉन्ग तो वही है जो उनको ओवरकम करता है। एम्ब्रेस योर फेलियर्स। इफ़ यू हैव फेल्ड इन समथिंग, एक्सेप्ट इट। कई बार ऐसा होगा कि आप 100% दोगे, बट आप डेस्टिन्ड ही नहीं हो वो चीज़ पाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो मेहनत की वो बेकार जाएगी, वो किसी और चीज़ में उतने ही मोमेंटम के साथ जाके ऐड होगी। जैसे इस एग्जांपल में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, वो जो गर्ल थी, सी कमिटेड सुसाइड, उसका आईआईटी में नहीं हुआ, फाइन, बट देयर आर अदर वेज टू बी इनटू आईआईटी। पर ये शायद बच्चों को पता नहीं होता है, तो दे टेक दिस स्टेप। सोसाइटी की भी प्रॉब्लम है कि वो चीज़ों को ऐसे नहीं रख पाते हैं समाज में जिससे लोग ये सारी चीज़ें जान पाएँ। आप बाद में जा सकते थे, आप एमएससी करने आईआईटी जा सकते थे, आप पीएचडी कर सकते हो आईआईटी से, आप प्रोफेसर बन सकते हो आईआईटी में, आप रिसर्च कर सकते हो। सो सिर्फ बीटेक करके ही या आईआईटी बीटेक के लिए ही नहीं है, देयर आर अदर थिंग्स, पर ये शायद बच्चों को पता नहीं होता है। तो आप मेहनत करिए, ठीक है, फेलियर होता है, होने दीजिए। अगर आप फेल नहीं होंगे तो आप स्ट्रांग नहीं बनेंगे। एडवर्सिटी आपको देखना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा है जिसको बचपन से ही हर चीज़ मिल गई जो उसने चाहा, वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। दिस इज़ लाइफ। जितना आप झेलेंगे उतना आप स्ट्रांग बनेंगे। एम्ब्रेस इट। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट failures, read about Jack Ma. Jack Ma, founder of Alibaba। एक वेबसाइट है ये, इसके बारे में आप पढ़िए। यू विल लव टू नो अबाउट हिज लाइफ, हिज जर्नी, what he had been through, और इन्होंने क्या अचीव किया। किसी को लगता ही नहीं था कि ये लाइफ में कुछ कर पाएंगे, जहाँ जाएं फेल हो जाते थे। इनसे ज़्यादा तो फेलियर शायद ही किसी ने देखा हो, बट ही इज़ अ बिलियनियर नाउ। जब तक इनके साथ वाले सेटल हो चुके थे लाइफ में, इनके पीयर्स सेटल्ड थे, इन भाई साहब के पास ये तक नहीं पता था कि इनको करना क्या है। बट everyone has their own journey. Just trust in time. तो इसी के साथ I would like to end my video. Thank you for listening this with patience, और try to inculcate या try to understand what I have said in this video. एम्ब्रेस योर सेल्फ। आप स्लो हैं, फास्ट हैं, आपकी मेमोरी अच्छी है, आप पास हुए, फेल हुए, ठीक है, आप पृथ्वी पर हैं, इसका मतलब आपके लिए एक प्लान है, एक रूट है। आप चलते जाइए अच्छे कर्मों के साथ, यू विल अचीव समथिंग गुड।
embrace yourself.